A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 4, that is Carbon and its Compound. And this is your seventh part. Okay, so we are already nearing to the end of this chapter. So if you're new to this channel, do like, share, and subscribe. And if you haven't watched any of the parts of this chapter or any chapter, you may go to the playlist and check it out. Okay, so let's see what we're going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright? Okay, let's see what we're going to discuss. Today we are going to discuss soaps and detergents and what is hard water. Okay, these are two particular topics that we are going to discuss. पहला सोप और डिटर्जेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ हार्ड वाटर क्या है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट शुरू करते हैं. सो फर्स्ट इज लाइक सोप. यू नो व्हाट इज सोप? साबुन. ठीक है, जो भी हम कपड़ा धोते हैं या कुछ भी धोते हैं तो जो साबुन होता है उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, साबुन साफ़ कैसे करता है या डिटर्जेंट साफ़ कैसे करता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो दैट इज़ क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप और क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप. ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो डिटर्जेंट है या सोप है हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ओके, लेट्स सी. So when soap is added to water, so basically what we do, basically we soak our clothes in that of the water that has soap. तो हम पहले क्या करते हैं, पानी लेते हैं. हम अगर डिटर्जेंट के साथ अगर धो रहे हैं तो हम पानी लेते हैं, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वी एड आर क्लोथ्स टू दैट, leave it for some time and then we wash it. So how, what happens in between that leaving of the cloth in that of soap water? Let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, टेक इट सर्फ ले लो. ठीक है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को वी एड इन वाटर. Okay. Next is the soap molecules. Okay, the detergent molecules uniquely orient themselves to form spherical shape micelles. Okay, what is micelles? Micelles is a picture में जैसे दिखाया गया है, that उस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ही हम सोप या डिटर्जेंट वाटर में पुट करते हैं. So heart it actually forms missile spherical shape के बुलबुले हो जाते हैं inside that of the water when we add our detergent to that of water in order to wash the clothes. Okay. Alright. So how it works? The non-polar hydrophobic, there are two parts. One is hydrophobic and one is hydrophilic part in that of your detergent. Now what is hydrophobic and what is hydrophilic? Hydrophobic से हमें क्या पता चलता है? Hydro, as I have already told you, whenever you are not getting any particular word's meaning, you can take it into parts in order to guess the meaning. So hydrophobic and hydrophilic. Hydro means water. We already know hydro का root word क्या है? Water से आया है. So hydro is water. Phobic, phobia. जैसे कि हमें पता है कि किसी किसी इंसान को कुछ कुछ हाइट से डर लगता है, so उन्हें फोबिया है हाइट का. या फिर कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को वाटर से डर लगता है. ठीक है, कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर फोबिया, चूहों से डर लगता है और सो फोबिया इज समथिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ. ओके, सो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वो पर्टिकुलर एंड जिसको कि पानी पसंद नहीं है. हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग. ओके, फोबिक मीन्स जिसको डर लगता है या they are afraid of or they not that loving part. Okay, they don't like. So hydrophobic is water hating part. ओके, और टेल जिसको हम पूंछ भी बोलते हैं, टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट द डर्ट और डस्ट. ओके, दैट अट्रैक्ट द डर्ट और डस्ट पार्ट ऑफ द फैब्रिक. while the hydrophilic end, हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. सो वाटर लविंग पार्ट, तो एक पर्टिकुलर टेल होता है. ठीक है, सो दैट इज एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है, कैन सी द सोप मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअली गोल्ड होता है और इसके वजह से टेल टाइप का होता है. द टेल इज द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट विच इज वाटर हेटिंग एंड दैट पर्टिकुलर स्पेरिकल शेप इज पोलर हाइड्रोफिलिक विच इज वाटर लविंग. ओके, तो जो टेल पार्ट होता है दैट इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो हमारे क्लोथ से अटैच होता है. और जो आपका पोलर हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, इट अटैच टू दैट ऑफ द वाटर. ओके, नाउ दिस स्टार्ट. सो यहाँ से क्या होता है, जो टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो क्या करता है, डस्ट डर्ट जो भी होता है वो हमारे क्लोथ से लेता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट को देता है. सो द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द हेड अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टू दैट ऑफ योर पर्टिकुलर सोप. Okay, okay, next.
So यहाँ पे अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन जहाँ पे यू कैन सी दैट पर्टिकुलर फैब्रिक जो कि गोल शेप का है, ठीक है, बीच में हमारा डर्ट है एंड दैट इज योर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि टेल पोर्शन है, दैट इज टुवर्ड्स द फैब्रिक, एंड दैट इज पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट इज वाटर लविंग पार्ट इज टुवर्ड्स दैट ऑफ योर वाटर। ओके, सो दैट इज अ फैब्रिक इज इन वाइट कलर, डर्ट अंदर है और यहाँ पे एक टेल पोर्शन है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक विच इज वाटर हीटिंग, इट अट्रैक्ट्स द डस्ट, एंड द पोलर हाइड्रोफिलिक इज आउटसाइड, इट अट्रैक्ट्स द वाटर। ठीक है, इसी से मैकेनिज्म से अब कपड़ा धोना शुरू होगा, देखते हैं। अब क्या होता है द एजिटेशन और स्क्रबिंग, अब क्या हुआ, अब अटैचमेंट हो जाती है, कुछ टाइम हम उसको छोड़ देते हैं कपड़ों को, उसके बाद वी स्टार्टेड एजिटेटिंग इट, ठीक है, उसके बाद हम उसको पटकना शुरू करते हैं। तो जब हम उसको रगड़ते हैं या पटकना शुरू करते हैं, होता क्या है, द फैब्रिक हेल्प्स द मसल्स, उसी को मसल्स बोलते हैं जो हेड और टेल पार्ट होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक और नॉन and polar hydrophilic part. तो क्या होता है, scrubbing of the fabric helps the muscles to carry out oil or dirt particles and detach them from the fibers of the fabric. तो जब भी हम उसको स्क्रब करते हैं यानी ऐसा रगड़ते हैं या पटकते हैं कपड़े को, तो हमारा जो मिसल्स पार्ट यानी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो टेल होता है और फोबिक पार्ट जो होता है, सॉरी, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और पोलर हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो क्या करता है, मिसल्स के साथ साथ वो जो मिसल्स होते हैं वो डर्ट पार्टिकल्स भी अपने साथ बाहर ले आता है फैब्रिक से। ओके, दैट हाउ इट वर्क्स। सो क्या होता है, जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक के पार्ट के साथ ऑलरेडी हमारा डर्ट अटैच है और हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ हमारा वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, जब हम पटकना रगड़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो पूरा मिसल है वो कपड़ों से बाहर आ जाता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक और पोलर हाइड्रोफिलिक एंड के साथ डर्ट भी बाहर आ जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, दिस इज अ गुड मैकेनिज्म, ओके, दिस इज एन easy one. Let's see it again. So what happens, so first of all how actually the soap mechanism or the detergent mechanism works. बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी कोई डिटर्जेंट को हम वाटर में डालते हैं मिशेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाता है जहाँ पे एक टेल होता है और एक हेड होता है। हेड रीजन इज अ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड tail region is the non-polar hydrophobic end and the head region is the polar hydrophilic end. अब tail जो होता है hydrophobic है, so it does not like water, so it attaches itself to the dust present in the fabric, whereas the polar hydrophilic end which loves water attach itself to that of the water. Simple. उसके बाद कुछ टाइम के बाद when we agitate the cloth, हम जब कपड़ा रगड़ते हैं या पटकते हैं उस टाइम पे क्या होता है, the particular muscles that have the head and the tail along with that of the जो भी head tail होता है यानी कि non polar hydrophobic and that attach itself to that of dirt and the polar hydrophilic which attach to the water, the whole missile molecules along with that of the dirt which is attached comes out of the fabric and then we wash the clothes. So in this way the cloth is washed. So this is the mechanism of how our detergent or soap helps us to remove the dirt from the cloth. ठीक है, ऑयल डर्ट डस्ट इसी से क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है जिसमें कि एक हेड और एक टेल रीजन होता है। हेड इज पोलर हाइड्रोफिलिक एंड और टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो पोलर एंड नॉन पोलर एंड होता है उसमें हमारा डस्ट अटैच होता है, हम जब एजिटेट करते हैं तो वो पूरा मिसल्स हेड टेल के साथ साथ हमारा डस्ट भी बाहर आ जाता है। सो दिस इज द वे थ्रू विच आवर क्लोथ वॉक्स, हमारे कपड़े जो होते हैं धुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर, वी मस्ट हैव मेनी ऑफन हैव लिसन्ड अबाउट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम Mg एंड कैल्शियम इज Ca। तो वो जो हार्ड वाटर होता है इट कंटेन्स द सॉल्ट्स ऑफ calcium and magnesium principally as bicarbonates, chlorides and sulfates. ठीक है, when soap is added to hard water, calcium and magnesium ions of hard water react with soap, forming insoluble curdy white precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acid. Next, these precipitates stick to the fabric being washed and hence interfere with the cleaning ability of the soap. Therefore, a lot of soap is wasted if the water is hard. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हार्ड वाटर से हम बाल धोएं या फिर कपड़े धोएं तो साफ़ नहीं होता,
क्यों नहीं साफ़ होता है? क्योंकि हार्ड वाटर में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, ठीक है? ऑलरेडी अवेलेबल होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। तो बेसिकली क्या होता है, इन सॉल्ट्स की वजह से ये सॉल्ट क्या करता है, जब भी हम सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं अपना बाल धोने के लिए या नहाने के लिए, या फिर आप कपड़े धोने के लिए जब भी यूज़ करते हो, जब हम डिटर्जेंट सोप ये सब यूज़ करते हैं वाटर में, तो वो क्या करता है, एक लेवल ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट अबव फॉर्मेशन कर देता है और उससे बबल्स फॉर्मेशन नहीं होते। हार्ड वाटर में कभी बबल नहीं बनता है। सॉफ्ट वाटर होगा तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, अच्छा कपड़ा धुलता है, बाल भी साफ़ होता है। बट हार्ड वाटर में भी स्टिकी स्टिकी कपड़े भी एकदम थे सही से धुलते नहीं, साफ़ नहीं होते, क्योंकि उनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से बबल्स नहीं फॉर्मेशन होते, एक लेयर ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वही लेयर ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेसिपिटेट की वजह से सही से जो होता है बाइंडिंग नहीं होता हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड का, और उससे कपड़े सही नहीं धुलते। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला, दिस C17H35COO Na अटैच होता है MgCl2 और CaCl2 के साथ, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। उसी प्रेसिपिटेट जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से कपड़े साफ नहीं होते, वो इंटरफेयर करता है वॉशिंग, जो भी हमारा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड का अटैचमेंट विद दैट ऑफ द डस्ट है, उसके साथ इंटरफेयर करके वो क्या करता है, कपड़े सही से धोने नहीं देता। दैट्स वाई जब भी हम हार्ड वाटर अपना बाल धोने में या फिर कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, साफ़ नहीं होता। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इट interferes in the binding of the interface in the washing process, because of which the cloth or the hair is not properly washed. Okay, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अगर समझ में नहीं आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, बिकॉज दीज आर न्यू थिंग्स यू हैवंट read it earlier in the classes. So you need to understand these things like hard water. We often have learned about, we often had heard about व्हाट इज़ हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। बोलते हैं हार्ड वाटर है, साफ़ नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कि उसमें सॉल्ट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से साफ़ नहीं हो पाता है सही से, ठीक है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हो गया आपका वॉशिंग टेक्निक, कैसे धुलते हैं हम, हमेशा कपड़े धोते हैं या अपने बाल धोते हैं, लेकिन धुलता कैसे, वो डस्ट निकलता कैसे, उसके नीचे उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। एंड व्हाट इज इट मैकेनिज्म, मिसल फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट विच गेट्स अटैच्ड इटसेल्फ टू द फैब्रिक स्टार्ट dust or dirt or oil, and there is a polar hydrophilic part which gets attached itself to that of water, that is water loving part। जब भी हम उसको एजिटेट करते हैं कपड़ों को या पटकते हैं, तो उस टाइम पे मिसल जो होता है, along with that of your missiles, the dust particles come out of the clothes, and hence the clothes are washed। Okay, so this is actually the phenomenon of washing of the clothes and what is hard water। Okay, so अगर ये आएगा तो आई होप कि आप इसको सही से लिख पाओगे, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं करना, सही से लिख लेना, ठीक है? और किसी को अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below, I'll definitely answer। and if you have an exam on 9th of October, okay, so ये वीडियो आते आते आई गेस कि वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा। सो आई होप दैट आप अपियर करोगे, वो 4 से 4:45 के बीच में होने वाला है 9th ऑफ अक्टूबर का। एंड तो अपने आप को इवैल्यूएट करो, अच्छे से नोट्स पे वगैरह बना के रखो, ताकि आपको ईजी होगा, ठीक है? एंड अच्छे से पढ़ो, ठीक है? आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट क्लास in the next class with a new session. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.